ભણતરને તો રાજનીતિનો અખાડો ન બનાવો। જી હા, આ મારું સ્ટેન્ડ છે, એબીપી અસ્મિતાનું સ્ટેન્ડ છે। રાજનૈતિક પાર્ટીઓ આપણી શિક્ષણ વ્યવસ્થાને રાજનીતિનો અખાડો બનાવી રહ્યા છે। કોઈને રસ નથી કે એકબીજાને સુઝાવ આપીને તમામ રાજ્યની શિક્ષણ વ્યવસ્થાને સુધારીએ। નાના બાળકો કે લડે ને કે તારા કરતો મારો શર્ટ જો ચોખ્ખો છે ને તારા શર્ટ ઉપર ડાઘા, એ સ્થિતિ શરૂ થઈ છે ગુજરાતમાં અને દિલ્હીમાં। આજના બે દ્રશ્યો આમ આદમી પાર્ટીના નેતા અને દિલ્હીના શિક્ષણ મંત્રી મનીષ સિસોદિયા આજે ગુજરાતના પ્રવાસે આવ્યા। શિક્ષણ મંત્રી જીતુભાઈ વાઘાણીના વિસ્તારની અંદર સરકારી પ્રાથમિક શાળાની મુલાકાત લીધી। સ્વાભાવિક રીતે જ આપ આ દ્રશ્યો જોઈ શકો છો। એ વર્ગખંડની હાલત છે શું? આવા રિપોર્ટ એબીપી અસ્મિતા ભૂતકાળમાં પણ રજૂ કરી ચૂક્યું છે। જોકે રાજ્ય સરકારે આ બજેટ બાદ એમ કહ્યું છે કે 19,000 નવા વર્ગખંડ અમે બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ। તો બીજી તરફ જ્યાંથી મનીષ સિસોદિયા આવતા હતા એ રાજ્ય એટલે કે દિલ્હીથી બીજા દ્રશ્યો આવ્યા। દિલ્હીથી બીજેપીના સાંસદ અને નેતાઓ ત્યાંની સરકારી શાળાઓની હાલત છે શું એનો વિડીયો બનાવી એમને પણ પ્રસારિત કર્યો। એનો મતલબ એ થયો કે બંને રાજ્યોની અંદર એક નાગરિક તરીકે, એક જર્નાલિસ્ટ તરીકે કહું તો બંને રાજ્યોમાં કદાચ શિક્ષણમાં કાર્યો થયા હશે તો બંને રાજ્યોમાં શિક્ષણના અનેક કાર્યો થવાના બાકી છે। આ મારી સકારાત્મકતા છે। આ ગુજરાતના નાગરિકની પ્રોગ્રેસિવ વિચારસરણી છે કે સારા કામ થયા હશે, પણ મનીષ સિસોદિયા જ્યાં ગયા એ જ પ્રકારની સ્કૂલો ગુજરાતમાં પણ છે અને એ સ્કૂલો એ પ્રકારના વર્ગખંડ ગુજરાતમાં ન હોવા જોઈએ। ગુજરાતમાં એ કાર્ય થવું જોઈએ। તો બીજી તરફ દિલ્હીની અંદર બીજેપીનું જે પ્રતિનિધિમંડળ અલગ અલગ સ્કૂલોમાં ગયું ત્યાં પણ એ પ્રકારની હાલત નથી સારી, એ પણ હકીકત છે। ત્યાં પણ સારી હાલત થવી જોઈએ। એટલે જ લાગ્યું કે આ મુદ્દે ચર્ચા થવી જોઈએ। મારી સાથે ઈસુદાન ગઢવી જોડાયા છે, આમ આદમી પાર્ટીના નેતા પણ છે, સાથે જ આજે મનીષ સિસોદિયાની સાથે તે પણ હતા, સાથે જ ભારતીય જનતા પક્ષ તરફથી પરવેશ વર્માજી પણ જોડાયા છે, દિલ્હીના સાંસદ છે, અને શિક્ષણ શાસ્ત્રી અને કોંગ્રેસના નેતા મનીષ દોશી પણ જોડાયા છે। આપ ત્રણેયનું સ્વાગત છે। ઈસુદાનભાઈ, આપનાથી જ શરૂઆત કરવા માગીશ। આજે તમે લોકોએ જે જોયું એ દ્રશ્યો હું પહેલાં બતાવતો હતો। આપણે જાણીએ છીએ ગુજરાતની આ સ્થિતિ છે, પણ એવું કાર્ય કેમ ન થયું કે ત્યાંના શિક્ષણ મંત્રી આપણા શિક્ષણ મંત્રી સાથે બેસે, ત્યાંના એજ્યુકેશન સેક્રેટરી આપણા એજ્યુકેશન સેક્રેટરી સાથે બેસે અને પછી કોઈ સારી ફોર્મ્યુલા, દિલ્હી મોડેલ સારું હોય તો દિલ્હી મોડેલ આપણાવાળાને શીખવાડે, આપણા ગુજરાતના શિક્ષણ મંત્રી શિક્ષણ સચિવ દિલ્હીને શીખવાડે। આવી કાર્યવાહી કેમ નથી થતી? રોનકભાઈ, એ જ વાત છે। આજ ખેલદિલીની વાત છે, સમજો તમે। આજે પહેલાં મનીષજીએ એવું કહ્યું કે હું જીતુ વાઘાણીજીને આમંત્રણ આપું છું। આજે મનીષજીએ કીધું કે જીતુ વાઘાણી સીએમ સાહેબ બંને આવે અને હું એરપોર્ટ ઉપર સ્વાગત કરીશ અને કે એ સ્કૂલમાં જાશું। આ તો ખેલદિલી નથી, ખેલદિલી છે। બીજું, આજે તમે કહ્યું કે રાજનીતિ ન થવી જોઈએ। રાજનીતિ ધર્મ જાતિ ઉપર ન થવી જોઈએ, શિક્ષણ ઉપર, બેરોજગાર ઉપર અને હેલ્થ ઉપર રાજનીતિ થવી જોઈએ। પણ કેવી થવી જોઈએ? પોઝિટિવ રાજનીતિ થવી જોઈએ કે ભાઈ આટલું મેં કર્યું છે, આટલું તમે વધારે કરો। આજે હું એમ કહું છું કે ભાવનગરમાં ગયા, અત્યારે ભાવનગરમાં તમારી જ ચેનલમાં હું જોઈ રહ્યો હતો, રિપોર્ટ પહેલાંમાં આવ્યું મારા વોટ્સઅપ ઉપર કે એમાં અધિકારીઓએ મિટિંગ લીધી તો ત્યાં જે ગરીબના બાળકો ભણી રહ્યા છે એના માટે ભલું થાય કે ન થયું? શરૂઆત આ ભાજપ સરકાર શિક્ષણ માટે વિચારતી થશે કે નહીં થાય? આમ આદમી પાર્ટી આવે ન આવે, મૂકો એ બધું પડતું મૂકો, પણ જ્યારે કોઈ મુદ્દો છે, આજે હું કોઈ ધર્મ જાતિ ઉપર ક્યારે રાજનીતિ ન થવી જોઈએ, કારણ કે એ આસ્થા સાથે જોડાયેલી છે। પણ આજે રાજનીતિમાં આવ્યા શું કામ છે? હું ઈસુદાન ગઢવી શું કામ આવ્યો છે? તો ખેડૂતોનું ભલું થવું જોઈએ એના માટે કરવું જોઈએ, શિક્ષણ વ્યવસ્થા સારી હોવી જોઈએ એના માટે કરવું જોઈએ, આરોગ્ય વ્યવસ્થા સારી હોવી જોઈએ એના માટે કરવું જોઈએ, બેરોજગાર માટે સારું હોવું જોઈએ એના માટે કરવું જોઈએ। તો આની તો રાજનીતિ છે, એની તો મજા છે। રાજનીતિ મજીરા વગાડવા તો આવ્યા નથી કોઈ। અને જે કરવું છે, આજે તમે કહ્યું કે દિલ્હીમાં સારી સ્કૂલ, હું રોનકભાઈ તમને અત્યારે આમંત્રણ આપું છું, તમારી જ્યારે ટિકિટ કપાવો તમે પોતે જઈ આવો। આજે ભાજપના સાંસદ શ્રી ગયા, આનંદ થયો, જાઓ, હજી પણ એમ કહું છું જવું જોઈએ અને અમારી પણ ક્યાંય ભૂલ થતી હોય તો સુધારવા માટે પ્રયાસ કરવો જોઈએ। પણ એ ગયા તો શું મળ્યું? ટેબલ ટેનિસ મળ્યું,
તમે જુઓ અંદર ક્લાસરૂમમાં કશું જ ના મળ્યું તો એ લોકો જે આપણે જે લાદી ક્યાંક તૂટી ગઈ હોય, કાંઈ કોઈ કલર ઉખડી ગયું અથવા તો કલર બાકી હોય, પ્લાસ્ટર ચાલુ હોય, એના ફોટો અને વિડીયો મૂક્યા. હું એમ કહું છું આ તો શરમજનક કહેવાય. તમારે આખા તમે કોઈ પણ બાળકને 200 ફોન તમે કરો કે શિક્ષણ વ્યવસ્થામાં દિલ્હી સારું કે ગુજરાત સારું, એ કહેશે. હું એમ કહું છું તમે સર્વે કરાવો ને, અમે કોણ છીએ? તો એ સાંસદોએ પોઝિટિવ જવાની જરૂર હતી. આજે હું એમ કહું છું એક સ્કૂલ બતાવો. અને હું તો તમને એમ કહું છું બધા પત્રકારોને વિનંતી છે મારી, હું પત્રકાર તો ધર્મ રહ્યો છું, પત્રકારોનો ધર્મ છે કે સાચું આપણે દેખાડીએ, સાચું કહીએ. આજે એ તમે વિડીયો જુઓ, એમાં એક પણ જગ્યાએ ટેબલ વગર છે, બેન્ચ વગર છે. અચ્છા, બાળકો કેવા છે, ટેબલ ટેનિસના રૂમ કેવા છે, ક્લાસરૂમ કેવા છે, બહાર કેવું મસ્ત છે. અને ભાજપના સાંસદો ઉપર મને એ દયા આવી કે જે લોકો પોતે બનાવ્યા હતા, એમના જ વડીલોએ જે બનાવી હતી સ્કૂલો, એમાં સુધારા કરી અને અત્યારે મનીષજીએ બનાવી. એ 2015ના ફૂટેજ છે, તમારે જોતા હોય તો આપી દઈશ. અને અત્યારે 2019ના ફૂટેજનો એક વિડીયો છે, 21નું 22નું નથી, 19 સુધીમાં જ સારી બની ગઈ હતી. તો આ બધી વસ્તુઓ સ્વીકારવી જોઈએ અને રાજનીતિ શુદ્ધ થવી જોઈએ. રાજનીતિ એટલા માટે શુદ્ધ થવી જોઈએ કે આજે રોનકભાઈ તમને મને કદાચ સારો સેલેરી મળતું હોય, સારી ઇન્કમ હોય તો તમારા મારા બાળકો તો હજી પણ ખાનગીમાં ભણી શકશે. પણ એ ગરીબનો શું કે જ્યાં 20,000 રૂપિયો કમાતો હોય અને લાખ રૂપિયો ફી હોય તો એ સરકારી શાળામાં ભણે અને એને આપણે કહી દઈએ કે તમારે આ 700 શાળામાં એક જ શિક્ષક છે, ભણવું તો ભણ, નહીં તો ભાગ. આ કેટલી હદે હું એમ કહું છું ક્રૂરતા છે, અહંકાર છે. આ બહુ સમજવા જેવી છે. બીજું મારી એક વાત એ કેવી છે, એક એડ કરી દેવી છે કે તમે પેપર ફૂટે છે એ પકડાતા નથી મોટા માથા, અને જે પેપર ફૂટવાના જે પુરાવા આપે છે એ યુવરાજને તમે જેલમાં નાખો છો. તમે કયા કાનૂન વ્યવસ્થા? ગુજરાતમાં યુવાનો અત્યારે કાળ ઝાડ થઈ ગયા છે. યશુદાનભાઈ જોડાયેલા રહેજો. મારી જોડે પરવેશભાઈ સાંસદ જોડાયેલા છે. वर्मा जी, आपका स्वागत है. आपने क्या देखा, और आप गुजराती में सुन रहे होंगे, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, हमारे पुराने पत्रकार मित्र भी हैं. उनका कहना है कि आप बहुत कुछ तलाशा लेकिन आपको खंडहर स्कूल कहीं मिली ही नहीं. आप जहां गए वहां सब कुछ ठीक ठाक ही था. क्या है कि ये अगर गुजरात से देखेंगे तो इनको कुछ नहीं दिखाई देगा, और जो इन्होंने आम आदमी पार्टी का चश्मा पहना हुआ है उससे तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा. मगर मैं ये जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, और मैं उनको बुलाना चाहता हूं दिल्ली में कि वो आए मेरे संसदीय क्षेत्र में, और मैं आपको कम से कम 20 स्कूल ऐसे दिखाऊंगा जहां पर जिनके भवन को डेंजरस घोषित कर दिया गया है कि आज उनकी बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है. वो सारी बिल्डिंग के दीवार में क्रैक आ गया है, उनकी छत कभी भी गिर सकती है, और उसके अंदर बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं. अगर ये उनको गलत नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोई भी आम आदमी पार्टी का नेता का बच्चा दिल्ली सरकार के स्कूल में नहीं पढ़ता है. अगर इन्होंने वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए तो अरविंद केजरीवाल का बच्चा, मनीष सिसोदिया का बच्चा, या इनके किसी भी मंत्री का बच्चा या किसी एमएलए का बच्चा, कोई तो उन स्कूल में पढ़े जो इन्होंने वर्ल्ड क्लास बनाए. मगर आज जो मैंने स्थिति दिखाई है कि सारा जो अपना लेंटर है वो गिरने को है, सारा फर्श खराब है, उस स्कूल में कोई साइंस का सब्जेक्ट नहीं है, कोई कॉमर्स का सब्जेक्ट नहीं है, केवल आर्ट्स पढ़ाई जाती है. किसी भी स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है, किसी स्कूल में लाइट नहीं आ रही थी. और इनको मैं क्या दिखाऊं, ये क्या देखना चाहते हैं? इसलिए मैं इनको दिल्ली बुलाना चाहता हूं, और मैं देश के सभी हर राज्य के शिक्षा मंत्री को दिल्ली बुलाना चाहता हूं कि आप उन 5 स्कूलों में मत जाइए जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अच्छे अच्छे बिल्डिंग बना दिए हैं, जिनको वो बाहर से अंग्रेज को बुलाकर उनको दिखाते हैं. मैं आपको हमारे दिल्ली के गांव में लेकर जाऊंगा, कॉलोनियों में लेकर जाऊंगा. वहां के स्कूल देखिए, 7 सालों में 1600 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च कर दिया. अगर ये 1600 करोड़ रुपया दिल्ली में सारे स्कूलों में खर्च कर देते तो आज कोई ये हालत नहीं होती. इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास में, ये पहला ऐसा मुख्यमंत्री है देश में जिसके पास में कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है. बाकी हर राज्य के मुख्यमंत्री के पास में कोई ना कोई विभाग होता है.
ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कभी विधानसभा नहीं जाते, अपने ऑफिस नहीं जाते। आपको हैरानी होगी, पिछले 7 साल में केवल 14 बार अपने ऑफिस गए हैं। उसके अलावा अपने ऑफिस नहीं जाते। अपने घर से, अपने घर में 21 करोड़ रुपए लगा रहे हैं, अपने घर को महल बना रहे हैं, उसमें स्विमिंग पूल बना रहे हैं जी। तो इनकी जो सच्चाई है वो बिल्कुल एकदम परे है। दिल्ली में 3,500 स्कूल चलते हैं, जिसमें एमसीडी के स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं। केवल 900 स्कूल ऐसे हैं जो दिल्ली सरकार के हैं, और वो 900 स्कूल में 450 स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है, और 330 स्कूलों में कोई साइंस नहीं है, कॉमर्स नहीं है, केवल आर्ट्स पढ़ाई जाती है, और कोई इंग्लिश मीडियम नहीं है। तो क्या ये दिल्ली का वर्ल्ड क्लास स्कूल है? परवेश भाई, क्योंकि आपने कहा, सबसे पहले बता दूं, ईसुदान गढ़वी जो है वो गुजरात आम आदमी पार्टी के नेता है और कारोबारी राष्ट्रीय सदस्य है। लेकिन क्योंकि आपने बोला, ये ईसुदान भाई तुम्हारी जोड़े आओ, एक सेकंड आओ ईसुदान भाई, क्योंकि आपने बोला ही कि आप आइए ईसुदान भाई, तो मेरी परवेश भाई आपको भी विनती है और ईसुदान भाई आपको भी विनती है। ईसुदान भाई, परवेश भाई, मैं आप दोनों को लेके जाता हूं। एक सेकंड ईसुदान भाई, मैं आप दोनों को लेके जाता हूं। परवेश भाई आप 5 स्कूल दिखाइए दिल्ली के, ईसुदान भाई 5 स्कूल आप दिखाइए, मैं उसको लाइव टेलीकास्ट करना चाहूंगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। परवेश भाई आप तैयार है? रौनक भाई, इसलिए मैं आओ तब जुड़े। और मैं इनके नेता मनीष सिसोदिया को ये कहना चाहता हूं कि वो गुजरात की चिंता कर रहे हैं। पहले दिल्ली के स्कूल तो ठीक कर लें। पहले दिल्ली में जहां पर जिन लोगों ने उसको विधायक बनाया है, जहां पर वो जिस प्रदेश के मंत्री हैं, पहले उसको तो ठीक कर लें। वो बाकी राज्यों में जाकर चिंता कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पंजाब घूम रहे हैं, ये अपना सिसोदिया वहां पर घूम रहे गुजरात में, तो दिल्ली में कौन चिंता करेगा बताइए? परवेश भाई आप तैयार है? लेकिन मैं जो बोल रहा हूं उस बात पे तैयार है? अरे बिल्कुल तैयार है, कल ही आ जाइए यहाँ पर। मैं बात कर लेता हूँ। ईसुदान गढ़वी थी, किसी एमएलए का बच्चा नहीं पढ़ रहा है। ये सांसद साहब आप बोलो। ईसुदान तुम्हारा भाई आवाज आवे छे मारू? बिल्कुल आप बोलो। अच्छा, मैं सांसद साहब आपसे बोलो, मैं आपको जवाब देता हूं। बोलो कि आपने कहा कि किसी एमएलए का बच्चा नहीं पढ़ रहा है। मैं आपको चुनौती देता हूं कि क्या अगर एमएलए का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता होगा तो क्या आप राजनीति छोड़ देंगे या तो मैं छोड़ दूंगा? बोलो। ये सब झूठी बातें मत करो। और अरविंद केजरीवाल जी के बच्चे की बात करें, वो तो आईआईटी पास हुई है बच्ची। मेरी बात आप सुनिए। और 27 साल का भाजपा का यहाँ का शासन और 7 साल का वहां का शासन, कंपैरिजन करिए। आपको मैं यहाँ 500 स्कूलें दिखाना चाहता हूँ, 500, 500, मैं तो 500 नहीं 1000 स्कूल दिखा दूं आपको। यहाँ व्यवस्था नहीं है ऐसी, मैं आपको 1000 स्कूल यहाँ दिखा सकता हूँ। और आपने कहा गुलाब सिंह जी यादव को, अभी मैं लाइव में आपको साथ जुड़ू। बोलो कि आप अगर ये स्वीकार करें कि गुलाब सिंह जी का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता हो, यहाँ का प्रभारी है, तो आप क्या मान लेंगे कि आपने झूठ कहा या तो राजनीति छोड़ देंगे? चैलेंज स्वीकारते हैं आप? मैं ये बोल रहा हूँ, हमें ये राजनीति नहीं करनी चाहिए। झूठ की राजनीति हमें नहीं करनी चाहिए। आप बहुत बड़े सांसद श्री हैं, आपको लोग चुनते हैं, आपको लोग अच्छी तरह से देखते हैं। मुझे लगता है कि इस तरह की झूठ की राजनीति से हमें बचना चाहिए, आपको भी और मुझे भी जी। और अगर कहीं दिल्ली की स्कूलों में गलती है, मैं मनीष सिसोदिया जी को और अरविंद जी को मैं लेटर लिखूंगा कि आप अच्छा करिए। अच्छा करने का वचन हमें निभाना है। ऐसी राजनीति होनी चाहिए। आप बोलिए, आप स्वीकारते हैं अगर हमारा विधायक का बच्चा वहां पढ़ता हो दिल्ली में, तो क्या आप राजनीति छोड़ देंगे? चैलेंज स्वीकारते हैं? चलो सांसद श्री जी। परवेश भाई हेलो। नहीं, अगर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कोई नया स्कूल बनाया क्या? नहीं, बाड़कनु पूछो रौनक भाई, बाड़कनु तुम्हारी पास। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कोई नया स्कूल बनाया क्या एक भी 7 साल में? कि उसके बच्चे पढ़ रहे हैं। परवेश भाई आप बता रहे हैं, लेकिन ईसुदान गढ़वी का, यही तो कह रहा हूँ, ईसुदान गढ़वी का कहना है। कल आप आइए दिल्ली में, मैं आपको गुलाब सिंह के बच्चे दिखाता हूँ कहाँ पढ़। एमएलए का बच्चा पढ़ रहा हो, परवेश सिंह जी, एमएलए का बच्चा अगर पढ़ रहा हो तो क्या आप राजनीति छोड़ देंगे? कौन से स्कूल में पढ़ रहा है वो? और मैं आपको दिल्ली में लेकर चलता हूँ। कौन से स्कूल में पढ़ रहा है बताओ ना। मैं ये तो कह रहा हूँ, आप चैलेंज स्वीकारोगे? स्कूल का नाम बताओ, कौन से स्कूल में पढ़ रहा है? मैं कौन लाइन पर जोड़ूंगा? मैं ये बोल रहा हूँ, आप कौन से स्कूल में पढ़ रहा है नाम बताओ। झूठ बोला या तो आप राजनीति छोड़ देंगे। चैलेंज ऐसी होनी चाहिए। कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं नाम बताओ।
कि अभी फोन करके पूछ कौन ले। से स्कूल में पढ़ रहे हैं, नाम बताओ। नहीं तो फिर आप छोड़ देंगे राजनीति। तो कौन मैं से ये स्कूल तो में बोल रहा पढ़ रहे हैं, हूं, नाम आपको बताओ। मैं चुनौती दे रहा हूं ना, तो नाम बताऊंगा और आपको लेकर जाऊंगा। तो मैं ये कह रहा हूं, तो कौन आप से क्या स्कूल- स्वीकार करेंगे कि आपने झूठ बोला? करेंगे स्वीकार? नहीं करेंगे स्वीकार? मैं आपको एक बात बताना अगर चाहता मैं हूं। आपको आपको दिखा मालूम दूं- है कि आपको मालूम है मेरे पिताजी रौनक भाई, दिल्ली के रौनक भाई, गुलाब मुख्यमंत्री जी ने थे। फोन लाइन ऊपर जोड़ो। क्या आपको पता है रौनक मेरे भाई, पिताजी गुलाब जी दिल्ली ने के फोन लाइन ऊपर मुख्यमंत्री जोड़ो। थे? मैं और मैं जब रौनक वो भाई मेरे को- पिताजी रौनक भाई दिल्ली को के रिक्वेस्ट करता मुख्यमंत्री हूं थे, कि वो प्रभारी तब MLA को उनका फोन लाइन बच्चा पर जोड़े। दिल्ली मैं सरकार नंबर के देता हूं। स्कूल में पढ़ता था। तो ऐसी तुम झूठी भैया बात मेरे मत से करो। क्या मुकाबला देखो, करोगे? झूठ तुम बोलना, बार बार बोलना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, गुलाब सिंह का बेटा कौन से स्कूल में पढ़ता है, उसका नाम હું बताओ। જોડી લઉં करने चले गए। એક મિનિટ ઈસુદાનભાઈ મારી ટીમને કહીશ કે ગુલાબસિંહને मैं अभी उनको- એક સેકન્ડ गुलाब ઈસુદાનભાઈ सिंह का એક बेटा સેકન્ड कौन से नाम स्कूल में पता नहीं पढ़ता है। है, नाम એક बताइए। સેકન્ડ ગુલાબ એક સેકન્ડ ઈસુદાનભાઈ એક સેકન્ડ ઈસુદાનભાઈ रौनक જોડા भाई, रौनक અરે भाई, પણ ઉભા गुलाब तो રહો सिंह ભાઈ जोड़ो। એક સેકન્ડ ઉભા રહો હું જોડી मैं ये કાઢું बोल रहा हूं, अगर MLA એક दाऊद સેકન્ડ बोल रहे हैं, नाम ઈસુદાનભાઈ बताओ, कौन से स्कूल में મારી पढ़ते हैं? ટીમને હું કહીશ કે फिर ગુલાબસિંહ आप स्वीकार करेंगे એક क्या? સેકન્ડ ઈસુદાનભાઈ ગુલાબસિંહ જે આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્ય છે તેમને गुलाब ફોન सिंह જોડી का बेटा અને कौन પૂછી से લઈએ स्कूल में पढ़ता है, नाम बताओ ना। परवेत भाई पूछावी लो मैं पूछवा लेता हूं, मैं फोन करके बात भी कर लेता हूं। आप दोनों जुड़े रहे, मैं कांग्रेस से तब तक बात कर लेता हूं। मेरी नॉर्मली ये डिबेट, ये जो कार्यक्रम है डिबेट का फॉर्मेट नहीं होता है, लेकिन क्योंकि ये बच्चों का सवाल है, शिक्षण का सवाल है, मैं इस चर्चा को आगे भी बढ़ाऊंगा। तब तक मैं मनीष भाई जोड़े बात करूं। मनीष भाई, आ तू मैं केम નહીં, બંનેની ઘટનાક્રમ તમે જુઓ. સમગ્ર ઘટનાક્રમમાં નથી ગુજરાતની ભાજપ સરકારની કોઈ બાબતોની વાત ચાલતી, નથી દિલ્હી સરકારની. આ તૂતુ મેમાં ગુજરાત અને દિલ્હીના બાળકોના ભવિષ્યનો સવાલ છે. તમે શિક્ષણનો અધિકાર કેવી રીતે મળશે એની તો ચર્ચા નથી કરતા. કઈ રીતે દિલ્હીની અંદર સાયન્સ સ્કૂલોની સ્થિતિ ખરાબ છે, અહીંયા સાયન્સ ભણાવવામાં નથી આવતું, અહીંયાની સ્થિતિ ખરાબ છે. અહીંયા વિઝિટિંગ ટીચર છે તો અહીંયા પ્રવાસી શિક્ષક છે. ભાઈ પ્રવાસી પક્ષી તો સાંભળ્યા હતા, આ પ્રવાસી શિક્ષકને આ શું આવે છે? પ્રશ્ન એ છે કે વર્ગખંડમાં ભણાવવાવાળો શિક્ષક નથી અને સ્માર્ટ સ્કૂલની વાતો થાય છે. સૌથી મોટી અત્યારે બેઠેલા લોકોને હું પૂછવા માંગુ છું કે દિલ્હીની અંદર હોય કે ગુજરાતની અંદર આઈઆઈટીમાં ભણે છે કેજરીવાલજીનો દીકરો, આઈઆઈટીમાં કેજરીવાલ પોતે ભણ્યા. પંડિત જવાહરલાલ નહેરુના દ્રષ્ટિકોણથી આ દેશમાં છપાયેલી ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજી, ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેનેજમેન્ટ આજે દેશમાં અવ્વલ નંબર ઉપર કેમ એ સંસ્થાની ચર્ચા થાય છે? કેમ ગુજરાતની અંદર અમે તો 27-30 વર્ષ કર્યું ગુજરાતની સ્થાપના સાથે, અમે જેટલા વખત શાસન કર્યું 95 સુધી ગુજરાતમાં તમામ શિક્ષકોને પૂરો પગાર આપ્યો. કેમ ભારતીય જનતા પાર્ટી ફિક્સ પગાર ઉપર કરે? ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસે જે કાંઈ કરી છે એમાં કન્યા કેળવણી મફત કરી. આજે ગુજરાતનો કન્યા કેળવણીમાં ગ્રાફ કેમ ઊંચો આવ્યો છે? દરેક દીકરીને શિક્ષણનો અધિકાર આપ્યો માધવસિંહ સોલંકીની સરકાર, અમરસિંહ ચૌધરીની સરકાર, કોંગ્રેસની સરકારે. તમે એ વાત કહેવા માટે આવ્યા છે? ખુલ્લા મને વાત કરો. તમે સારી વાત કીધી રોનકભાઈ, મને ગમ્યું કે ગુજરાતમાં જે સારું છે, ગુજરાતની જે તાકાત છે એ દિલ્હીમાં અંદર કરો, પણ દિલ્હીની અંદર જે સારું હોય અહીંયા કરો. પણ તું તે મેં કરીને 1600 કરોડની 3200 કરોડની જાહેરાત આપીને કોને બેવકૂફ બનાવો છો? કોના બાળકોનો, ગરીબ બાળકોનો, સામાન્ય બાળકના શિક્ષણનો અધિકાર છે? ગુજરાતમાં શિક્ષણના વ્યાપારની લૂંટ ચલાવવા માટે ક્યાં ક્યાં નેતાઓની કોલેજો ને સંસ્થાઓ છે? શાળા કોલેજોમાં કોણ કહે છે કેમ ફી માફી નથી થતી? આપણે અવારનવાર એબીપી અસ્મિતાથી અને અન્ય માધ્યમોથી ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ કે ગુજરાતમાં મોટા પાયે વિદ્યાર્થીઓ, વાલીઓ આગળથી ફી વસૂલ કેમ સરકારમાંથી કોઈ બોલતું નથી? રાજ્યના શિક્ષણ મંત્રી છે એમ કહે છે કે તમે છોડીને અહીંયા જતા રહ્યો. ભાઈ શિક્ષણમાં મંત્રી કરતા મંત્રીને શિક્ષણની વધુ જવું એ રીતની. અને રહી વાત ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની દ્રષ્ટિએ, અત્યારે સરકાર એમ કહે છે કે અમે 20,000 ઓરડા બનાવવા માટે ફરકે. સાહેબ તમે શરૂ કરો ને ઓરડા બનાવવાનું, કેટલા વર્ષે બનશે ખબર? સરકારે પોતે કીધું 858 ઓરડા અમે 3 વર્ષમાં બનાવ્યા. કેટલા? જી મનીષભાઈ, 858. હવે ગણી લો 20,000 ઓરડા કેટલા વર્ષે બનશે? એમને કહ્યું છે કે આ વર્ષના અંત સુધીમાં એટલા બનાવી આપીશું. નહીં, કઈ રીતે બને? જે સિન્ટેક્સના નામે, હું ખુલ્લેઆમ કહું છું, સિન્ટેક્સના નામે બનેલા ઓરડા ગુજરાતમાં 1,000 કરોડ રૂપિયાનું કૌભાંડ થયું. 1,000 કરોડ રૂપિયાનું. સર્વ શિક્ષા અભિયાન, મોટા પાયે ખરીદીનું કૌભાંડ. તમે જુઓ, એક આખી સિસ્ટમ છે. કરોડો રૂપિયાની જાહેરાતની સ્કૂલ ઓફ એક્સલન્સની વાત થાય, બીજી બાજુ 6,000 શાળાઓને તાળા મારવાનું પાપ ગુજરાતની ભારતીય જનતા પાર્ટીની ભ્રષ્ટ સરકાર કરી રહી છે. મનીષભાઈ, ઈસુદાનભાઈ અને પરવેશજી, આપ तीनों जुड़े रहे. ઈસુદાનભાઈ, ગુલાબસિંહને ફોન કરવાનો અમે પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ, એમનો ફોન બિઝી આવી રહ્યો છે. આપ એમને જાણકારી આપજો. વિરામ પછી હું એક વિરામ લઈ લઉં. વિરામ પછી આપ ત્રણેયનો સંપર્ક કરીશ. ભણતરને ન બનાવો રાજનીતિનો અખાડો. હું ગેરંટી સાથે કહું છું, આ કાર્યક્રમના અંત સુધીમાં
હું સુમેળભર્યો સોલ્યુશન લાવીને બતાવીશ, કારણ કે અમારો મકસદ શિક્ષણમાં રાજનીતિ ન થાય તે માટે જ ચર્ચા કરવાનો છે. મારી સાથે ઈસુદાનભાઈ પણ જોડાયા છે અને પરવેશ વર્માજી પણ જોડાયા છે. आप બંને दिग्गज છો. परवेश जी, आप પણ दिग्गज છો. आप भी दिल्ली में लंबे समय से, आपके पिताश्री भी दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं. क्योंकि परवेश जी, आपने पूछा था उस दौरान ब्रेक के वक्त ईसुदान गढ़वी से मेरी बात हुई, उन्होंने गुलाब सिंह से बात करके वो स्कूल का नाम तलाशा है. ईसुदान भाई, તમે હિન્દીમાં કહી શકો છો કે કઈ સ્કૂલની અંદર ગુલાબસિંહના સંતાનો સરકારી શાળામાં ભણે છે? जी, पहले मैं इसलिए आपको बता दूं, बिल्कुल पहले मैं आपको यहाँ का गुजरात का नज़ारा दिखा दूं. आप यहाँ आइए, मैं आपको 500 स्कूलें ऐसी दिखाऊंगा. आप तो गए थे ना, वहाँ बेंचेस भी थी, यहाँ बेंचेस भी नहीं है. तो आप यहाँ पधारिए, मेरा आमंत्रण है, आप स्वीकार करिए. दूसरी बात, यहाँ का भाजपा के मंत्री है, MLA, किसी का बच्चा यहाँ पढ़ नहीं रहा है और वो खुद की स्कूलें हैं उनकी, और वो अमेरिका तक उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ किसी की सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं. और आपके मंत्री जी ये कहते हैं कि अगर आपको इसी स्कूल में पढ़ना है तो पढ़िए, वरना भागो दिल्ली. ईसुदान भाई, बात, ईसुदान भाई रोकेश, कहा कि किसी का बच्चा अगर ईसुदान भाई, दिल्ली के MLA ईसुदान का भाई मारी बच्चा, સાથે दिल्ली के એક સેકન્ડ, ઈસુદાન ભાઈ રોકેશ, એક સેકન્ડ રોકેશ, મારી સાથે ગુલાબસિંહ જોડાયેલા છે, મારી સાથે ગુલાબસિંह જોડાયેલા છે. गुलाबसिंह जी, हम लोग चर्चा कर रहे हैं, दिल्ली में किसी भी मंत्री या विधायक के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ रहे, ऐसे बीजेपी के सांसद ने, उनका बयान है. और ईसुदान भाई ने कहा कि आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं. आपसे यही जानना है कि कौन सी सरकारी स्कूल में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं? मैं बता देता हूँ रौनक भाई. मेरे बड़े बेटे ने 2018 में, आपको आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है जी. 2018 सेक्टर 22 गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट किया मेरे बड़े बेटे गौरव ने. मैं आपको अगर कहो तो रौनक भाई, मेरे पास आपका नंबर नहीं, अभी आपको मैं मार्कशीट और उसका व्हाट्सअप कर देता हूँ. मेरे बड़े बेटे ने 2018 में पास आउट किया है सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 22 गवर्नमेंट स्कूल से. दूसरा, मेरा छोटा बेटा युगल, जिसकी स्टोरी आपके खुद के चैनल एबीपी ने की थी, खुद के एबीपी चैनल ने की थी, अभी बैठ के यूट्यूब करा हुआ है, तो वो भी वहीं पढ़े हैं. उसके बाद उन्होंने 10th पास करने के बाद वहां से कोर्सपोंडेंस पे अभी पढ़ा, क्योंकि उसको हॉकी खेल रहा है. वो उसी स्कूल में एक स्टेडियम बना है. और मैं बड़े प्राउड और गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि देश का पहला सरकारी स्कूल है जहां पे अभी तो इसका मतलब कोई नहीं पढ़ रहा पहले ना? राष्ट्रीय खेल हुए हैं, जिसमें मेरे बेटे ने पार्टिसिपेट किया है, और वो लगातार कई वर्षों से हॉकी खेल रहा है, जिस वजह से उसको बार बार ट्रेवल करना पड़ता है. तो अभी वो कोर्सपोंडेंस में पढ़ रहा है, लेकिन दोनों बेटे मेरे सरकारी स्कूल में पढ़े. मंत्री का बेटा नहीं पढ़ रहा ना स्कूल में? दूसरा, तो मैं नहीं, बोल रहा आज की था. तारीख है, हमारे साथी अमानतुल्लाह खान के बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है. एक सेकंड परवेश भाई, एक सेकंड. बट गुलाब सिंह जी बताइए, किसके बच्चे अभी पढ़ रहे हैं? अमानत भाई के, अमानतुल्लाह खान के बच्चे अभी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं. और कौन सी स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप बता सकते हैं? ओखला में पढ़ रहे हैं. मैं सांसद साहब को ले जाऊंगा वहां पे, और अगर सांसद साहब को कोई, अगर मुझे लगता है ना, इनको थोड़ा सा ज्ञानवर्धक कुछ कोई दवाई इनको लेनी चाहिए. आप आइए, मैं आपको ऐसे सरकारी स्कूल में लेके जाता हूँ जहाँ से मेरे बेटे ने पास आउट किया. मेरा बेटा आज हॉकी खेल रहा है. आपको शायद वो स्कूल नहीं दिखाई दिए. आज जिस स्कूल में गए वो मेरी विधानसभा के छावला गांव का स्कूल है. और मैं बता दूं रौनक भाई, पूरी दिल्ली के अंदर जब रिजल्ट की बात आई तो वो छावला स्कूल 3rd नंबर पे आया था स्कूल में रिजल्ट की. लेकिन गुलाब सिंह जी, अभी एक विधायक के बच्चे पढ़ रहे हैं, सही है? आप ये बताना चाहते हैं? बिल्कुल पढ़ रहे हैं, बिल्कुल पढ़ रहे हैं. बहुत बहुत आभार आपका परवेश भाई. देखिए, कौन सा पढ़ रहा है? ये जो आम आदमी पार्टी का यहाँ पे एक सेकंड ईसुदान भाई, एक सेकंड के प्रवक्ता बैठा हुआ है जी, वो ये बोल रहा था कि गुलाब सिंह का बच्चा पढ़ रहा है. अब वो नहीं पढ़ रहा, गुलाब सिंह का बच्चा नहीं पढ़ रहा, तो अब आप क्या करेंगे? आप अपना मेरा इस्तीफा मांग रहे थे, आप क्या करेंगे? बच्चा सरकारी स्कूल में उनके कार्य कहाँ पढ़ रहे हैं? सुनिए, कहाँ पढ़ रहे हैं? भागिए मत यार, ये क्या कहाँ पढ़ रहे हैं? वो अपना कॉरेस्पॉन्डेंस ईसुदान भाई, एक सेकंड. पढ़ रहे हैं दिल्ली से. ईसुदान भाई, आज चैनल आप आज एक सेकंड ईसुदान भाई, ईसुदान भाई एक સેકન્ડ. આ ચર્ચાનો આ ફોર્મેટ જાણો છો? મહેરબાની કરીને પ્લીઝ એક પછી એક પોતાનો વ્યૂ મૂકીશું, એક પછી એક પોતાનો વ્યૂ મૂકીશું. परवेश भाई, आप आपकी बात रख लीजिए, फिर ईसुदान भाई के पास जाऊंगा. का बच्चा पढ़ रहा है स्कूल में, उनका कहना है दूसरे एक विधायक है, उनका बच्चा पढ़ रहा है. उन्होंने नाम भी बताया, स्कूल का नाम भी के कौन से विधायक का बच्चा आज की डेट में पढ़ रहा है, ये मैं पूछ रहा हूं जी.
मैं जवाब ले लेता हूं ईशुदान भाई। हाल मनीष सिसोदिया के बच्चे तो स्कूल जाते हैं। मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री हैं, उसके बच्चे स्कूल जाते हैं। क्या वो सरकारी स्कूल में जाते हैं क्या? હું એમ કહું છું તમારા કાર્યકર એમએલએ માં मैं जी। यही तो कह रहा हूँ जा रहे हैं और अगर आपको वो लेकर जाए गुलाब दिल्ली जी, का जो तो शिक्षा क्या मंत्री आप है, क्या उसके क्या बच्चे मानोगे जाते आप? हैं मैं ये बोल सरकारी रहा हूँ। स्कूल में? खैर मनीष सिसोदिया अरे मेरे साहब उसके आपको जो मैं बच्चे पूछता स्कूल हूँ, में पढ़ते हैं, आप प्राइवेट बात स्कूल को में। मत घुमाइए एमएलए की तो बात वो थी। दिल्ली सरकार के आप बात स्कूल में क्यों घुमाइए नहीं मत। पढ़ते? अरे उनके बच्चे बड़े हो गए होंगे ना। नहीं अरे जो शिक्षा आप- मंत्री है आपके उसके बच्चे बच्चे पढ़ रहे नहीं हैं क्या? पढ़ेंगे क्या? यहाँ के गुजरात के मंत्रियों का जो शिक्षा मंत्री है उसके बच्चे नहीं पढ़ेंगे क्या स्कूल में? आपके शिक्षा मंत्री के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं पता है? आपका नहीं अरे चलो आप अपने एमएलए की बात पे आ जाओ। के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं आपका पता है कौन सा आपको क्या? एमएलए का बच्चा पढ़ और रहा है? कितनी चोरी करके पकड़े गए पता है आपको क्या? ईशुदान भाई अरे आप कहाँ पढ़ रहे राजनीति छोड़ बताइए, दोगे कहाँ नहीं, पढ़ चलो वो मूल प्राइवेट मुद्दा स्कूल ऊपर में आओ। पढ़ाते हैं। मैं एक आपको लेकर सेकंड जाऊंगा। ईशुदान भाई अरे मैं परवेश यही तो भाई कह रहा हूँ, क्या आप राजनीति छोड़ नहीं, देंगे? अगर मैं राजनीति छोड़ दूंगा तो तुम्हारी क्या शर्त है? केजरीवाल क्या आप राजनीति छोड़ राजनीति छोड़ देगा? देंगे? बता देता हूँ मैं आपको, लेकर जाता हूँ स्कूल में। नहीं ईशुदान भाई साबड़ा अंदर हाँ, बीच चैलेंज मैं ये आप बोल रहा हूँ, राजनीति और- छोड़ देंगे? और आप- अगर तुम हारोगे तो केजरीवाल राजनीति छोड़ देगा तो बताओ। ए- तुम हारोगे तो केजरीवाल मैं छोड़ राजनीति दूंगा छोड़ ना, देगा मैं तो आपके बताओ। साथ खड़ा हूँ डिबेट में। खैर तुम क्या चीज हो तो भाई? नरेंद्र मोदी छोड़ तुम देगा क्या बोलो, चीज तो हो? खैर ये एक सेकंड परवेश तुम भाई क्या चीज हो? अरे तुम कोई तो आप- सांसद हो क्या? परवेश भाई अरे ईशुदान इतना भाई तुम क्या कोई सांसद हो क्या? अरे- तुम क्या अरे- चीज अरे- हो? परवेश काम भाई कर- मैं ईशुदान भाई राजनीति छोड़ दूंगा। ये- सर तुम दोनों कल तो आयो जुम्मा तो चुम्मा सांसद अपना हो तो क्या कल सांसद तो तुम जनता आयो समझते आम हैं? आदमी पार्टी में। मैं राजनीति छोड़ दूंगा। चुम्मा क्या परवेश- चुम्मा? ऐसे बोल रहे हो परवेश जैसे भाई, आप ईशुदान 40 भाई, साल से राजनीति कर आप रहे बंदे ने रोकिस मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आप दोनों को रोकूंगा आप दोनों को रोकूंगा। एक मिनट परवेश भाई ईशुदान भाई परवेश भाई ईशुदान भाई आप बंदे ने रोकिस। परवेश भाई आपको भी रोकूंगा, ईशुदान भाई आपको भी रोकूंगा। आप दोनों की राजनीति में जरूरत है, किसी को राजनीति छोड़ने की जरूरत है। परवेश भाई एक सेकंड, परवेश जी एक मिनट। आप दोनों राजनीति में रहे, आप दोनों अच्छे लोग हैं, आप दोनों की जरूरत है। परवेश जी एक सेकंड, सर एक सेकंड, सांसद महोदय एक सेकंड जी, मैं मूल मुद्दे पर आता हूं। इस वो मुद्दे को अपना मनीष सिसोदिया जा रहे गुजरात में और अपने बच्चे को दिल्ली में प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। क्या बात है, वाह। परवेश जी सुनिए, अब मैं पॉइंट पे आता हूं। सच्चाई यह है कि मेरे गुजरात में भी मॉडल स्कूल बनी है, बहुत अच्छी स्कूल बनी है। हो सकता है उसकी तादाद कम हो। सच्चाई यह भी है कि मेरे गुजरात में कमरों की कमी है, दिल्ली में भी कमरों की कमी होगी, दिल्ली में भी कमरे खंडर होंगे। दिल्ली छोटा है, पॉपुलेशन गुजरात या तो एरिया गुजरात की तादाद गुजरात की तुलना में कम है, हो सकता है उसके लिए वहां कमी कम होगी। लेकिन सर एक सेकंड, लेकिन पहले आप अपना घर ठीक करोगे तभी तो दूसरे घर में जाओगे। पहले आप अपना राज्य तो ठीक करोगे तभी तो दूसरे राज्य में देखोगे। आपका राज्य तो खराब है। आपके यहां पर हर साल 8वीं 9वीं क्लास में 1.5 लाख बच्चा फेल हो रहा है दिल्ली सरकार के स्कूल में। तो आपका अपना राज्य तो ठीक नहीं हो रहा। आप जा रहे हिमाचल में, गुजरात में, तो पहले आप अपना स्कूल तो ठीक कीजिए। बिल्कुल आप जुड़े रहिए। ईशुदान भाई से बात कर लेता हूं। सर आप जुड़े रहिए। ईशुदान भाई जैसे को राजनीति मानना पड़ता है। એમનું ચોખ્ખું કહેવું એમ છે કે દિલ્હીની શાળાઓની હાલત સારી નથી, પહેલા એનું ધ્યાન રાખો પછી ગુજરાત જાઓ। પણ રોનકભાઈ તમે એમને પૂછો, અહીંયાના મંત્રીના એકેનો દીકરો ભણે છે, ધારાસભ્યનો દીકરો ભણે છે, છતાં હું કહું છું કે ત્યાં ધારાસભ્ય ભણે છે તો તું ક્યાં ચીજ હો? આટલો તો અહંકાર છે અમને। આ ભાજપા વાળાને જનતા ઘરે નહીં બેસાડે ત્યાં સુધી અમને શાંતિ નહીં મળે। અહીંયાનો શિક્ષણ મંત્રી એમ કહે છે કે તમારે આ સ્કૂલમાં ભણવું તો ભણો, 700 જ શાળામાં એક શિક્ષક છે, તમારે ભણવું જ ભણો, નહીં તો ભાગો દિલ્હી। પહેલાના દિલ્હીના સાંસદ એમ કહે છે કે ભાઈ આ લોકો તો અહંકાર છે, આપ ક્યાં ચીજ है? અરે ભાઈ ચીજની ક્યાં વાત છે? જનતા તમને બનાવે છે। ચલો, આટલો ઈશુદાનભાઈ, અહંકાર મૂળ સારો મુદ્દા છે। ઉપર આવો। અને ઈશુદાનભાઈ- હું કહું છું કે દિલ્હીની સ્કૂલ છે, તમે 50 સ્કૂલ એવી રીતે દેખાડું। ઈશુદાનભાઈ મૂળ આ તો મુદ્દા ઉપર આવો। હું એમ કહું છું કે બહુ ઈશુદાનભાઈ અહંકાર એક કરી ગયો છે સેકન્ડ, ભાજપવાળાને। ईशुदानभाई एक सेकंड, मूल मुद्दा ऊपर आऊं। परवेश भाई पहले आपसे जवाब ले लेता हूं, मैं एक सेकंड। ईशुदान भाई, परवेश भाई, मैं खुद मानता हूं गुजरात में नई स्कूल अच्छी बन रही है। गुजरात में कमरों की कमी है, कमरे टूटे हैं, मैं खुद बार बार दिखाता भी रहा हूं, लेकिन अच्छी स्कूलें बनना शुरू भी हुआ है। इसी प्रकार से दिल्ली में भी शुरू हुआ होगा और ऐसे विजुअल आते भी रहे।
गुजरात से भी आए हैं, दिल्ली से भी आई है। क्या परवेश भाई ये हो सकता है कि मैं यानी कि एबीपी अस्मिता, परवेश भाई वर्मा जी और ईसुदान भाई गढ़वी ये सब मिलके दिल्ली की अच्छी स्कूलें भी देखे, 5 जहां सुधार की जरूरत है वो भी देखे। सुधान भाई गढ़वी क्यों? दिल्ली का शिक्षा मंत्री क्यों नहीं जाएगा? चलो दिल्ली के शिक्षा मंत्री को मैं सुधान रिक्वेस्ट भाई कर गढ़वी क्यों? मैं उसके लिए बोलता आप हूं, दिल्ली के शिक्षा मंत्री को लेके चलिए ना हमारे साथ। मैं उनको भी पूछता हूं भाई, मैं उसके लिए बोल रहा हूं क्योंकि गुजरात मैं आपको भी लाना चाहता हूं। आपको मैं गुजरात की 5 अच्छी भी स्कूल दिखाता हूं और जहां 5 में बदलाव करने की वो भी दिखाता हूं। ये हो सकता है, मैं इस एंड पे लेके जाना चाहता हूं। सच्चाई ये है कि कमियां दोनों साइड पे है। क्या मैं आपके माध्यम से क्या मैं आपके माध्यम से ये जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है उनसे 2-3 सवाल पूछ सकता हूं आपके माध्यम से? आप पूछिए। मैं फिर से एक बार बोल देता हूं, ईसुदान भाई गढ़वी जो है वो एक तो प्रवक्ता नहीं है, उनके राष्ट्रीय कारोबारी के सदस्य है। मुझे सर एक आधी सेकंड सर, आधी सेकंड। वो केवल मेरे को एक सवाल का जवाब दीजिए। जी बताइए। जो ये बैठे गढ़वी साहब बैठे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, बस एक सवाल का। पिछले 7 साल हो गए अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली में मुख्यमंत्री बने हुए। पिछले 7 सालों में एक भी नया स्कूल, एक भी नया कॉलेज, एक भी नया हॉस्पिटल, एक भी नया फ्लाईओवर, एक भी नई यूनिवर्सिटी, अगर आप मेरे को नाम बता देंगे तो जो आप बोलेंगे मैं वो करूंगा। एक भी नई चीज का नाम बता दीजिए, उसका एड्रेस बता दीजिए। मैं पूछ लेता हूं ईसुदान भाई। देखिए सांसद श्री जी, मैं आपको बताऊं कि मैं गुजरात का हूं, लेकिन पूरी दुनिया देख रही है। और अगर शर्त लगाना चाहते हैं, यानी कि चैलेंज है, ये चैलेंज की बात है, मैं यहाँ आपको गुजरात में भी फिर लाकर रहूंगा। बोलो, आना पड़ेगा आपको, और मैं आपको दिल्ली में भी लेकर जाऊं और आपको बताऊं कि ये स्कूल नई बनी है। मैं आऊंगा, और आप मानोगे कि नहीं बनी है। अरे चैलेंज मगर आपके साथ नहीं होगा। नरेंद्र मोदी साहब यहाँ आए चैलेंज थे, होगा मेरी बात केजरीवाल सुन के लीजिए। साथ, आपके साथ नहीं होगा। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ सर, मुझे पता है। आप अगर सांसद होते मैं आपके साथ चैलेंज करता। मेरी बात तो सुनिए, वहाँ के एमएलए आ जाएगा। आप अगर सांसद होते मैं आपके एमएलए आ साथ जाएगा चैलेंज वहाँ करता। का, अब चिंता मत करिए। मैं अपना केजरीवाल के साथ में चैलेंज करूंगा। ठीक है, मान आप लीजिए। मेरे को एक भी नया स्कूल, नया कॉलेज, नया हॉस्पिटल, नया फ्लाईओवर, नई यूनिवर्सिटी का नाम बता दीजिए। आप जो बोलेंगे मैं मान जाऊंगा। मैं यही तो कह रहा हूँ आपको। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस आपके साथ में गुलाब सिंह जी है ना, साहब लेकर आए थे ना, आपके साथ में गुलाब सिंह जी है ना, विधायक दिल्ली के। आप उनसे पूछिए, नहीं कोई भी एक इतनी चैलेंज कर रहे हैं, नई चीज का एड्रेस बता दीजिए। देखो, मैं नहीं पता ना, आप तो गुजरात के हैं, मगर आपके साथ में अभी आए थे गुलाब सिंह जी। आपको लेकर आप उनको जाएंगे, फोन करके पूछिए, आप अगर चैलेंज एक भी नई चीज का एड्रेस बता दीजिए। आपको लेकर जाएंगे। 7 साल में एक भी नई चीज नहीं बनी है दिल्ली में। आप उसका एड्रेस नहीं बता सकते। आप बोल रहे हैं गुजरात का हूं, मैं कह रहा हूं गुलाब सिंह एमएलए, जो आम आदमी पार्टी का गुजरात का प्रभारी आप बता रहे हो है, उससे आप कोई भी नया चीज का एड्रेस तो पूछ लीजिए एमएलए जो केजरीवाल ने बनाया हो। अभी गुलाब जी ने आपको कहा है, सुनिए। अरे पहले सुनिए तो सही सांसद साहब, केजरीवाल जी ने, गुलाब जी ने अभी कहा है कि आपको लेकर जाएंगे वो। कोई नया एड्रेस, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। क्या आप गुजरात यहाँ आएंगे, चैलेंज स्वीकारेंगे? गुजरात में चैलेंज स्वीकारेंगे आप? क्या मैं जो कहता हूँ, एक तरीके से तो नहीं होता है, तरफ से 2 तरीके से। आप सुनिए, आप गुजरात आइए, मैं आपको गुजरात की 10 स्कूलें दिखाता हूँ। गुजरात में मेरा गांव है, आपको पता है? वहाँ के एमएलए श्री को बोलूंगा, वहाँ आपको पता है गुजरात में मेरा गांव है, आपको पता है? आपको पता है गुजरात में मेरा गांव है, कच्छ में। अरे मैं तो आपको आपको ये भी पता होगा ना कि आपका जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसका बच्चा पकड़ा गया था। जब वहां पे भूकंप आया था, बच्चा पकड़ा गया था, तब ये भी पता होगा। भूकंप आया था, मेरे पिताजी ने 2 गांव बनाए थे। मैं तो हर साल वहां पे आता रहता हूँ। ईसुदान भाई, परवेश भाई, मूल मुद्दाओं पर टकी रहो। आप दिल्ली आइए सर, सुनिए ना, सुनिए एक सेकंड। ईसुदान भाई, परवेश भाई, एक ब्रेक का वक्त हुआ है। एक ब्रेक, छोटे से ब्रेक के बाद आप दोनों से एक छोटी सी कमेंट लेके, और मैं अपेक्षा रखूंगा एक के बाद एक से बात कर लूं छोटी सी। मैं चाहता हूं कोई प्रॉपर सोल्यूशन निकले। हमारी साथ मनीषभाई दोशी जोड़ाया है, परवेश वर्माजी जोड़ाया है, सांसद है भारतीय जनता पक्षना, અને ઈસુદાનભાઈ ગઢવી જોડાયેલા છે। મનીષભાઈ, આપની કોમેન્ટ લઈ લઉં। આપ શું માનો છો, આ તૂતુ મેમે બંધ થઈ, નક્કર સોલ્યુશન શું હોય છે? નહીં, એટલે રોનકભાઈ, પરવેશજી એવું રીતે કહે છે, ભાજપના સાંસદ,
કે દિલ્હીમાં 1 લાખ વિદ્યાર્થીઓ નાપાસ થાય છે, 66% વિદ્યાર્થીઓને રીએડમિશન નથી મળતું. એ સત્તાવાર ઓનલાઈન રેકોર્ડ અવેલેબલ છે કે દિલ્હીની અંદર રીએડમિશનની મોટી સમસ્યા છે ને એ કેજરીવાલ સરકાર આજ દિન સુધી નથી કે 66% બાળકો એમને હેરાન પરેશાન થાય ને બીજી જગ્યાએ એમને જવું પડે ને હેરાનગતિનો સામનો કરવો પડે. પણ બીજી બાજુ અહીંયા 1 લાખ થાય છે તો અહીંયા ગુજરાતી ભાષામાં જ ખાલી 1.5 લાખ વિદ્યાર્થીઓ નાપાસ થાય છે અને દર વખતની આ સમસ્યા છે. મંત્રીશ્રીને ખબર નથી હોતી. સૌથી મોટામાં મોટી સાંસદશ્રીએ ભાજપાના સાંસદશ્રીએ સરસ કહી દીધું કે 7 વર્ષમાં એક પણ સારા બ્રિજ કે કાંઈ નથી. એનો મતલબ સારી વાત કહેવાય કે શીલા દીક્ષિતજીના શાસનની અંદર બનેલી સારા યુનિવર્સિટી કોંગ્રેસના શાસનમાં બની, સારા ફ્લાયઓવર બની, દિલ્હી બ્યુટીફુલ સિટી દિલ્હી બન્યું, દેશની રાજધાની સરસ મજાનું. એટલે કોંગ્રેસના શાસનના સમયની તો ગુજરાતની અંદરની શાળાઓની જે વાત કરે છે, આજે મારે દુઃખ સાથે કહેવું પડે કે ગુજરાતની અંદર 27 વર્ષથી ભાજપાના ભ્રષ્ટ શાસનની અંદર 700 શાળાઓ એવી એક શિક્ષકથી ચાલે, 14,562 શાળા એવી એક વર્ગખંડમાં એક કરતાં વધુ ધોરણના વિદ્યાર્થીઓ, 20,000 ઓરડાઓની ખામી હોય એટલે ઘટ જ હોય સીધે સીધી. અને 6,000 શાળાઓને તાળા મારીને તમે સ્કૂલ ઓફ એક્સલન્સનો એ વિશ્વ બેંકની આગળથી લોન લઈને પ્રોગ્રામ કરો. આમ તો ગુજરાત બહુ ધર્મેદાર છે, આપણે પાણીદાર છીએ, આત્મનિર્ભરની વાત કરીએ છીએ. અને બીજી બાજુ મારી છેલ્લી વાત કેવી છે કે જે કોઈ મને આનંદ થાય છે કે ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના કાર્યકર્તા તરીકે કે શિક્ષણમાં સારી ગુણવત્તા સાથે ગ્રાન્ટેડ અને સરકારી શાળાઓનું માળખું, શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ, કોલેજો, સરકારી અને ગ્રાન્ટેડનું માળખું દેશ આખા પર. કેન્દ્રીય વિદ્યાલય સાથે એનસીઆરટી સાથે કેમ સંપર્ક કરીને એક પણ દિલ્હી વાળા ખોટું કે અહીંયા 1600 કરોડનું બજેટ જાહેરાતમાં વપરાય, અહીંયા 3200 કરોડ જાહેરાતથી, પણ અંતે ભોગ બને છે ગરીબ સામાન્ય મધ્યમ વર્ગનો. અને એટલે જ કહું છું કે જાહેરાતમાં નાના વેપારોને બદલે જાહેર હિત માટે શિક્ષણ માટે વાપરો, તો જ ગુજરાત અને દિલ્હી શિક્ષણમાં આગળ વધશે. ઈસુદાનભાઈ માફ કરજો મનીષભાઈ, સમયનો અભાવ છે. ઈસુદાનભાઈ અંત તરફ જઈ રહ્યો છું. એક સેકન્ડ ઈસુદાનભાઈ, અંત તરફ જઈ રહ્યો છું, સમયનો અભાવ છે, મારો બ્રેકનો સમય છે. 1 મિનિટમાં આપ આપની કોમેન્ટ કરો. બીજું હું કહું છું, જો એબીપી અસ્મિતા ઇનિશિયેટિવ લેતું હોય, એક સેકન્ડ, જો એબીપી અસ્મિતા ઇનિશિયેટિવ લેતું હોય તો આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્ય અથવા તો હાલ જે પ્રભારી બન્યા છે, જે સાંસદ બનવાના છે, એ આ ચેલેન્જ સ્વીકારી દિલ્હીની પરવેશજી જે કહેશે શાળાની મુલાકાતે આવશે 1 मिनट में. ओके, ठीक है रौनक भाई, सांसद श्री को मैं बता दूं कि उन्होंने कहा कि नई स्कूल का एक भी नाम बताओ. स्कूल ऑफ एक्सलेंस द्वारका सेक्टर 22, राजकीय प्रतिभा स्कूल द्वारका सेक्टर 19, द्वारका सेक्टर 17 गवर्नमेंट स्कूल, गुमनेला विलेज गवर्नमेंट स्कूल गर्ल्स स्कूल, एस्ट्रो टर्फ ग्राउंड गुमनेरा. अरे उनको एड्रेस चाहिए तो एड्रेस भी पहुंच जाएंगे. सवाल ये है कि पहले स्वीकार करना चाहिए सत्य का. दूसरा कि यहाँ 6,000 स्कूल आपकी भाजपा वालों ने बंद किए जहाँ गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं. तीसरा कि यहाँ किसी आपके मंत्री का और एमएलए का बेटा पढ़ नहीं रहा है. आप एक सेकंड सांसद होकर ये मेरी चैलेंज है आपको कि अगर आपका एड्रेस पता नहीं हो तो आप जाकर आप माफी मांगना गुजरात की जनता की कि आपने गलत बोला. ઈસુદાનભાઈ, પહેલું તમારા પક્ષના ધારાસભ્ય કે સાંસદ મુલાકાતે આવશે, હા કે ના? ચેલેન્જ સ્વીકારશો ઈસુદાનભાઈ? હું તમને કહું છું, હા પાડું છું. ઓકે, ચલો. મેં સ્કૂલ ગણાવી એડ્રેસ તો રોનકભાઈ તમારે પૂછવાની જવાબદારી છે કે નથી? એક સેકન્ડ ઈસુદાનભાઈ, સમયનો અભાવ છે. પરવેશજી, 6000 સ્કूल बंद करी. परवेश जी अंतर जा रहा हूं, मेरे पास वक्त की कमी है क्योंकि बुलेटिन मुझे क्लोज करना है. क्या आप इस चैलेंज को ले रहे हैं कि उनके पक्ष के विधायक या सांसद, क्योंकि अब तो प्रभारी जो बन के आए वो भी सांसद बनने जा रहे हैं, वो आते हैं तो 5 अच्छी स्कूल और 5 जो आप दिखाना चाहे वो स्कूल पे विजिट करने आएंगे मेरे साथ? हाँ, मैं बिल्कुल आऊंगा, मगर उसके साथ में मैं एक और बता देता हूं. ये जो आम आदमी पार्टी के यहाँ पे प्रवक्ता बैठे गढ़वी जी, भाई साहब, एक तो आप वो शर्त हार गए, क्योंकि मैंने भी अभी फोन करके पता किया था. जो गुलाब सिंह जी अभी झूठ बोल के गए हैं. एक बेटा उनका बड़ा बेटा पढ़ता है अमेठी कॉलेज में, जो कि प्राइवेट कॉलेज है, दिल्ली में नहीं है, वहाँ पे उत्तर प्रदेश में है. और दूसरा बेटा उनका पढ़ता है एवरग्रीन स्कूल में, जो कि प्राइवेट स्कूल है, सरकारी नहीं है, वो एवरग्रीन स्कूल में पढ़ता है. आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि आप हैं प्रवक्ता, आपको जो भी कुछ लिखकर दे दिया जाता है वो आपका काम है बोलना, आपको कुछ उसके अपना तथ्य के बारे में नहीं पता. अभी ये 4 स्कूल के बारे में जो आपको बताया है ये भी सरासर झूठ है. ये चारों स्कूल
जब दिल्ली में राष्ट्रपति शासन था 2014 में, तब मैं दिल्ली में सांसद था, तब मैं ये चारों स्कूलों के उद्घाटन जो हमारी स्मृति ईरानी जी थी मंत्री, उनके साथ में करके आया था। ये केवल अभी बनकर तैयार हुए हैं इस समय में, मगर ये पहले से काम चालू हो गया था। भाई साहब, मैंने आपको कहा था कि केजरीवाल ने दिल्ली में एक भी नया स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, फ्लाईओवर, यूनिवर्सिटी नहीं बनाई है। मैंने आपको यही कहा था और नहीं बनाई है। जो मैं आपको बोल रहा हूं वो बिल्कुल सत्य के आधार पे बोल रहा हूं। इसलिए मैं आपके गुजरात में आऊंगा, आपके साथ में स्कूलों में चलूंगा, और आप भी मेरे साथ आइए। जब आप दिल्ली की हालत को देखेंगे तब आप तुरंत आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, दिल्ली में केवल झूठ है और कुछ नहीं है। आप ઈસુદાનભાઈ વર્માજી, આપ તમામનો આભાર। મારી મર્યાદા, મારી સમયની મર્યાદા છે, આપ તમામનો આભાર। પણ હું વિનંતી કરું છું ભારતીય જનતા પક્ષના સાંસદને પણ અને આમ આદમી પાર્ટીના ઈસુદાનભાઈ અને તેમના પક્ષના પ્રભારીને પણ, આવો સાથે મળીને દિલ્હીમાં પણ સારા કાર્ય થયા છે, મારા ગુજરાતમાં પણ સારી શાળાઓ બની છે। કેમ તમામ લોકો મળીને જે સારી વાતો છે એને એકબીજા સાથે શેર કરીએ, એકબીજા સાથે ઉજાગર કરીએ અને આગળ વધીએ। બસ આ જ કરવાની જરૂર છે અને આ થશે તો મારું ગુજરાત આગું ગુજરાત હતું, છે અને રહેશે, અને આપણું હિન્દુસ્તાન પણ શિક્ષણના ક્ષેત્રે આગળ વધી જશે। આજે અડધો કલાક મેં આપ તમામનો વધુ લીધો છે, એ બદલ દિલગીર છું, પણ અહીંયા સવાલ શિક્ષણનો હતો એટલે મને લાગ્યું કે આ મુદ્દે લાંબી ચર્ચા થઈ।